Hi, welcome to Bio's Thoughts। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिकली एंड करने वाले हैं our third part within the chapter Cell, the fundamental unit of life। ठीक है। Now again, before we begin, a quick recap of what we have completed in our previous sessions. In the last class, we talked about basically the organelles that are present in the cell. For example, we discussed about the nucleus, we talked about mitochondria, we discussed about plastids, right? And also we talked about the types of transport, जिसमें हमने active और passive transport पढ़े थे. Active transport was about the movement of molecules from a low concentration to a higher one with the help of energy, right? And passive transport was where the movement of molecules takes place from a high to a lower concentration without the usage of energy. Correct? इसके बाद हमने बात किया था regarding the examples. So in passive transport we talked about diffusion and osmosis, right? And osmosis में हमने osmotic solutions के बारे में discuss किया था, where we talked about hypertonic, hypotonic and isotonic solutions. Hypotonic solution होता है जहाँ पे cell swell up कर जाता है क्योंकि बाहर से पानी अंदर की तरफ जाता है cell में, right? Hypertonic में उल्टा होता है, cell से पानी निकल के बाहर जाता है, so the cell shrinks down. And isotonic is that solution where there no changes occur. ठीक है, अंदर बाहर सब जगह सेम सिनेरियो रहता है. In today's session, we are actually going to finish off the last part of the particular chapter, which is the endomembrane system. As you can see here, this is हम endoplasmic reticulum पढ़ेंगे. Then we'll talk about Golgi apparatus, lysosomes, vacuoles, centrosomes and centrioles, and of course the cell cycle. Okay, so let's jump right into this. सबसे पहले बात करते हैं endomembrane system की. तो endomembrane system का मतलब क्या है? Endomembrane system का मतलब होता है that all the organelles that are present inside the particular cell, the ones that are considered together as a endomembrane system because they are coordinating with one another. ठीक है, because their functions are coordinated. यानी कि कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, उनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं. लास्ट क्लास में हमने जैसे बात की थी रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये सारे के सारे अपने टाइम पे काम करते हैं, राइट? दे आर नॉट सो कोऑर्डिनेटेड एंड दे आर नॉट कनेक्टेड टू वन अनदर इन दैट वे, in a way where your endomembrane system, or I should say the organelles present in the endomembrane system are connected. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगेन व्हाट इज दिस इज बेसिकली नथिंग बट you can say a very well network of you can say tubular structure of the uh, cisternae and the tubules. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऐसे समझो दैट इट इज अ ट्रांसपोर्टिंग एंड प्रोडक्शन यूनिट. ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग एंड प्रोडक्शन यूनिट का क्या मतलब हुआ कि ये कुछ मटेरियल प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस पिक्चर में यू कैन क्लियरली सी द न्यूक्लियस प्रेजेंट ओवर हियर, जिसके जस्ट बाहर से आप देख पा रहे हो that we have the endoplasmic reticulum that is coming out. So this endoplasmic reticulum is actually made up of tubular structures. ठीक है, जो इस तरीके से scattered होते हैं, ऐसे flattened tubular structures आप देख पा रहे हो ना, flattened है और फिर ये proper cylindrical shape में है. तो दो टाइप में आपको देखने को मिलेंगे ER में. ठीक है, so when we say that ER is actually divided into two types, which is called as the rough ER and smooth ER. ठीक है, it is divided into two types. पहला होता है RER, जिसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है SER, जिसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिवन है, दिस होल पार्ट राइट ओवर हियर, ठीक है, इसके ऊपर ना ऐसे ये येलो कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं, है ना. व्हाट इज दिस? These are nothing but these are the ribosomes. Okay, तो जब कभी भी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना, तो इसका ये वाला जो पार्ट होता है ER का, ये रफ अपीयर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस. इसलिए इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा. ठीक है, अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है प्रोटीन बनाना. ऑब्वियसली बात है भाई, जब राइबोसोम उसके सरफेस पे मौजूद है तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि राइबोसोम होता है प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री. करेक्ट. सो इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन है इसका काम. ठीक है, ये बहुत ही एक्सटेंसिव होते हैं और एक कॉन्टिन्यूअस आउटर मेम्ब्रेन बनाते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग, जैसे आप देख पा रहे हो. Then moving a little further from that, we see the smooth endoplasmic reticulum. स्मूथ है क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई राइबोसोम्स मौजूद नहीं है, तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत स्मूथ दिखाई देते हैं. ठीक है, एंड नाउ these are the ones which are making lipids. What are lipids? Lipids are nothing but just fat molecules.
ठीक है, ये फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर मेड बाय द और दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एनिमल्स की अगर हम बात करें ना, तो एनिमल सेल्स में यूजुअली लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं जो कि एसईआर ही सिंथेसाइज करता है। यानी कि जब हम बात करते हैं एनिमल सेल्स की, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल सेल्स, तो इसके अंदर ना वो हमारे स्पेसिफिक स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं लिपिड जैसे। ओके, दीज आर कॉल्ड एज लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स। तो ये कौन सिंथेसाइज करता है? ये बेसिकली सिंथेसाइज करता है एसईआर, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल सेल का। ओके, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। यानी कि जब हम लेट्स से अ पर्सन टेक्स एन अल्कोहल या कोई ड्रग्स अगर लेता है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है एसईआर। एसईआर के अंदर बेसिकली इस तरीके के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर ड्रग को या अल्कोहल को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू मोर वाटर सॉल्युबल कॉम्पोनेंट्स में। ठीक है, वाटर सॉल्युबल components में से break कर देता है so that it can easily pass out from the body, does not harm the body. That is the reason that you would find that in animals, or I should say like basically humans, right? Animals and humans, इन organisms में आपको देखने को मिलेगा कि इनके liver में SER की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। Okay, because liver is the site for detoxification. You already know that. ठीक है, सो इस तरीके से अगर हम बात करें तो योर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम है प्रोटीन बनाना, लिपिड्स का बनाना, और इसके अलावा भी बहुत कुछ बनाता है। ऐसा नहीं है, इट मेक्स द कार्बोहाइड्रेट्स, ऑलराइट, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है और भी हार्मोन्स हिट करता है, फाइन, इट मेक्स अ लॉट ऑफ स्टफ। ओके, सो दिस इज बेसिकली द ईआर। अब इसी ईआर से जुड़ा हुआ है हमारे पास गोल्गी apparatus। ठीक है, अब देखो सब कुछ वन आफ्टर द अदर यहाँ पे काम करते चले जाएंगे। ठीक है, सो वी हैव द गोल्गी apparatus। नाउ दिस गोल्गी apparatus, अब आप इसे गोल्गी बॉडीज भी कह सकते हो। ओके, यू कैन कॉल इट एज गोल्गी बॉडीज एज वेल। ठीक है, सो दिस गोल्गी बॉडीज और गोल्गी apparatus was first observed by Camillo Golgi। कैमिलो गॉल्गी ने इसे पहले ऑब्जर्व करा था इन द ईयर 1898। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले ये डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स को न्यूक्लियस के आसपास देखा था। ठीक है, एंड देन दे वर नेम्ड एज गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिज नेम। फाइन, सो दीज आर नथिंग बट लाइक वेरी माइन्यूट, और यू कैन से फ्लैट डिस्क शेप्ड सिस्टर्नेस। ठीक है, सिस्टर्नेस को भी एक बार अच्छे से समझे। देखो ये जो एक फ्लैटन स्ट्रक्चर दिख रहा है ना इस तरीके से, ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो हमने अभी ईआर में भी देखा, ईआर में भी ये फ्लैटेंड पार्ट जो आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिस्टर्ने। ठीक है, दिस पार्ट राइट हियर इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिस्टर्ने, फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड दिस सिस्टर्ने इज व्हाट इज मेकिंग द पर्टिकुलर गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस सिस्टर्ने को अगर हम देखा जाए तो दो तरीके से होते हैं, एक सिस सिस्टर्ने होता है और एक ट्रांस सिस्टर्ने होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यूजुअली सिस कहलाया जाता है एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द ट्रांस सिस्टर्ने। तो सिस बेसिकली फॉर्मिंग साइड है। ठीक है, फॉर्मिंग फेस होता है, और जो ट्रांस होता है ये होता है मैच्योरिंग फेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली ये है कि जो भी मटेरियल जैसे कि प्रोटीन्स और लिपिड्स ईआर से बनकर आते हैं वो जाते हैं गोल्गी apparatus में। क्यों जाते हैं? बिकॉज गोल्गी apparatus का काम होता है उसे पैक करना। ठीक है, पैकेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड मॉडिफिकेशन का काम होता है। ठीक है, पैकेज, ट्रांसपोर्टेशन और मॉडिफिकेशन। तो जो भी प्रोटीन्स और लिपिड्स यहाँ पे आए थे इस एरिया से अंदर जाते हैं, उनका थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन का सिंपल मतलब सिर्फ ये है कि इट बेसिकली हेल्प्स इन लाइक अपग्रेडिंग द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, अपग्रेडिंग देम। ठीक है, उनको टैग करने के लिए होता है, उन पे टैगिंग करी जाती है, उन्हें टैग किया जाता है सो दैट दे कैन बी डिलीवर टू द specific regions within the cell. Okay, so they are tagged, okay, they are modified, and then they are packaged into little ball-like structures surrounding the Golgi apparatus, जिसे हम कहते हैं vesicles। ठीक है, तो वेसिकल्स में इन्हें पैक कर दिया जाता है और फिर उसके बाद इन्हें आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ओके, तो अब जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है ना, तो यहाँ से जैसे कुछ हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ऑफ कोर्स दीज आर बीइंग सेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स इन द सेल, और इनमें से कुछ होते हैं व्हिच आर गोइंग टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब फर्स्ट सेशन में देखा था कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फो
लिपिड बाइलेयर, याद आया है ना? तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो था, यानी कि दो लिपिड की लेयर है, उसके बीच में फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है, और यही एक्चुअली क्या करता है कि दिस इज बेसिकली द वन दैट इज अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज सॉलिड मटेरियल्स टू पास थ्रू। तो जो भी प्रोटीन्स और लिपिड पैकेज जो कि वेसिकल के अंदर फ्रॉम द गोल्गी apparatus पहुंचते हैं टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन फॉर द मेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? सो दिस मेकिंग और द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट इज कॉल्ड एज membrane biogenesis, cell membrane biogenesis, ठीक है? This is what is called as the making or like the membrane biogenesis. ये process है through which the making of the cell membrane or the plasma membrane takes place by the help of the lipids and the proteins that are coming from the Golgi apparatus. So this is how these are all interconnected right here. I hope it is clear to everyone. ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। हाँ, वन मोर थिंग बिफोर आई फॉरगेट कि गोल्गी apparatus ना बहुत एक इम्पोर्टेंट काम भी करता है, दैट इट हेल्प्स इन मेकिंग द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स एज वेल, ठीक है? सो इट मेक्स ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स एज वेल, ठीक है? ये जरूर याद करना, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दिस गोल्गी apparatus ऑल्सो मेक्स लाइसोसोम्स, जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है? लाइसोसोम्स भी बनाता है ये। तो अब जब लाइसोसोम्स पे ही जंप करते हैं, तो लाइसोसोम्स क्या है? ये इस तरीके के स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हो आप, है ना? और दिस इज अ मोर ट्रांसेक्शनल व्यू ऑफ द पर्टिकुलर लाइसोसोम। सो दीज आर नथिंग बट दीज आर लाइक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है? जिनका काम होता है टू प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus। मैंने क्या बताया था, ठीक है? ये तुम्हारा वेसिकल्स का काम था, लेकिन इसके बाद जो भी पैकेज मटेरियल है, ठीक है, जो भी लाइक आइसोलेटेड लाइसोसोम्स हमको देखने को मिल रहे हैं, देयर आर वेरियस लाइसोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर सेल, और ये इसका काम होता है ना, डाइजेशन का काम होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आ गया, या फिर कोई भी सेल ऑर्गेनल स्टार्ट्स टू फेल डाउन टू डू द वर्क, यानी कि वो फेल करना शुरू कर देता है, ठीक है? या फिर सेल ही क्या नाम है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू एनी XYZ कंडीशन, मे बी ड्यू टू एनी मेडिकल कंडीशन और समथिंग लाइक दैट। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट डज द लाइसोसोम डू विद दैट? इट एक्चुअली रिलीजेस आउट इट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। वो अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को बाहर साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है, ठीक है? और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे वो बाहर छोड़ता है, क्या होता है, that these are the ones which are going to break down and digest the whole of your whole of your cell, or the material, the foreign material that has entered inside the cell, उसको break down करके, उसे digest करके, और उसको फिर बाहर फेंकने का काम करता है लाइसोसोम। So this is like nothing but like a cleaning unit, ठीक है? सफाई यूनिट है ये हमारी, ऑलराइट? तो सेल के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर आता है, ओके, उसको ब्रेक डाउन करके, उसे डाइजेस्ट करके बाहर फेंकने का काम करना है। कोई भी सेल के अंदर ऑर्गेनल खराब हो जाता है, तो उसको ब्रेक डाउन करके बाहर फेंकने का काम करता है, फाइन। एंड वर्स्ट केस सिनेरियोस, अगर सेल ही काम करना बंद कर देता है, तो फिर वो अपने पूरे सेल को मार देता है, ठीक है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यू कैन से प्रॉपर्टी है लाइसोसोम्स की। दैट इज द रीजन दीज आर कंसिडर्ड एज द सुसाइड बैग। Okay, why are lysosomes considered as a suicide effects? Because they can digest their own cell in worst case scenarios. Okay, एक चीज याद रखो, हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की बात करते हैं, तो अगेन ब्रेक डाउन द टर्म बेटा। ओके, द हाइड्रो वर्ड स्टैंड्स फॉर वाटर, ओके, एंड लाइटिक का मतलब होता है लाइसिस, यानी कि तोड़ना, टू ब्रेक इट डाउन, ठीक है? दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर, राइट? And finally, we have the vacuoles again. Vacuoles are again membrane-bound space which are found in your cytoplasm. Now, they contain water. ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें होता है वाटर होता है, they have the sap as well, ठीक है? इनमें कुछ excretory products होते हैं, है ना? और ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें होती हैं, करेक्ट? तो कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स नॉन इम्पॉर्टेंट सारी चीजें यहाँ वैक्यूम में बेसिकली स्टोर हो जाती है। तो ये कुछ नहीं, एक स्टोरेज यूनिट का काम करता है, ठीक है? इट एक्ट्स लाइक अ स्टोरेज यूनिट, ये याद रखना, फाइन। सो नाउ व्हेन यू लुक एट दिस पर्टिकुलर वैक्यूल, तो दिस वैक्यूल इज बाउंड बाय अ वेरी सिंगल मेम्ब्रेन, जैसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये आप देख पा रहे हो, है ना? ये डार्क ब्लूइश कलर का जो पूरी बाउंड्री वॉल है, दिस इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट, दिस इज द कवरिंग ऑफ इट, ठीक है?
और याद रखना मैंने पहली क्लास में बताया था कि सेल प्लांट सेल के अंदर 90% ऑफ द स्पेस इज टेकन अप बाय द वैक्यूल इन इटसेल्फ, ठीक है। एंड एनिमल्स में क्या था, 50-50 है, होगा तो कई सारे होंगे और वो भी छोटे छोटे से, और अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स में ये जो टोनोप्लास्ट है ना, इसका काम होता है टू लाइक फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, कई सारे आयंस को ट्रांसपोर्ट करना। इसके अलावा और भी मटेरियल्स हैं जिनको अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमें लेकर जाना है इनटू द वैक्यूल, ये काम करता है आपका टोनोप्लास्ट, ठीक है। सो देयर कॉन्सेंट्रेशन इज, यू कैन से, सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करने का होता है वैक्यूल। ओके, सो दिस इज योर वैक्यूल्स। आई होप इट इज क्लियर। ऑल्सो ये जो वैक्यूल होते हैं ना, यही आपकी क्या नाम है, सेल की टर्जिडिटी भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। व्हाट इज टर्जिडिटी? टर्जिडिटी इज नथिंग बट द, लाइक यू कैन से, the ability of the, the cell to maintain its structure, ठीक है, यू कैन से दैट। तो यानी कि जब अगर सेल के अंदर, आई मीन वैक्यूल के अंदर काफी सारा पानी भर जाता है तो वो साइज में enlarge हो जाएगा। जब वो साइज में enlarge हो जाएगा, इट विल क्रिएट और इट विल पुट सम फोर्स और इट विल पुट सम प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन पे कुछ प्रेशर बिल्डअप करेगा, वो इन टर्न कुछ प्रेशर डालेगा, तो इसकी वजह से ना एक टाइटनेस क्रिएट हो जाती है, एक टर्जिडिटी क्रिएट हो जाती है, एंड दैट इज हाउ यू कॉल इट एज अ टर्जिड सेल, ठीक है। एज सुन एज इसमें से पानी निकल जाएगा तो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, वो एकदम सिकुड़ जाता है, अंदर के ऑर्गेनल सिकुड़ जाते हैं। तो जो पानी के अंदर भरा होता है ना, वही आपकी सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करके, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर सेल like vacuoles, right? Now moving centrosomes and centrioles again. So centrosomes and centrioles में याद रखना है कि these are found only in animals, ठीक है, only in एनिमल्स, ये याद रखना है, ये आपको प्लांट सेल्स में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो अब इनका काम क्या है, देखो, इफ यू लुक एट दिस इज व्हाट अ सेंट्रोसोम लुक्स लाइक, ओके। मतलब ये जो एक पूरा बंडल आप देख रहे हो ना, दिस होल बंडल, राइट? सो टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स टुगेदर आर व्हाट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोसोम, ठीक है। यानी कि इन दोनों को साथ में जब आप देखोगे तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ सेंट्रोसोम, एंड ये इंडिविजुअली क्या होता है, इनको सेंट्रियोल कहा जाता है, ठीक है। नाउ दे आर सराउंडेड बाय द पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, इनके सराउंडिंग में एक पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है, ओके, बेसिकली एक तरीके से आप देखो कवरिंग होती है, फाइन, एंड बोथ द सेंट्रियोल्स आर लाइंग लाइक परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ओके, बोथ lie perpendicular to one another, ठीक है। ऑल्सो मैंने क्या बोला था, हाँ, कि दे आर सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। तो अब काम क्या है सेंट्रोसोम्स का, मतलब क्या है ये, क्यों है ये, राइट? सो बेसिकली सेंट्रोसोम्स का काम सिंपली ये है दैट दे हेल्प इन इनिशिएटिंग द सेल डिविजन प्रोसेस एंड टू आल्सो मेंटेन द सेम व्हेन द सेल रिक्वायर्स, ठीक है, ये काम होता है। नाउ इफ यू लुक एट दिस पिक्चर राइट हियर, दिस इज नथिंग बट लाइक द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेंट्रियोल, कि सेंट्रियोल किस तरीके से है, मतलब बेसिकली एक सेंट्रियोल के ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। सो दैट इज देयर, लाइक यू कैन सी सेंट्रल शीथ, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो इसमें हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि दीज सेंट्रियोल्स आर लाइक द वंस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द सेल डिवीजन, ठीक है, टू initiate and maintain cell division in animal, ठीक है। सो दिस कम्स अराउंड फॉर योर सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल। एंड फाइनली लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। सो दैट इज योर सेल साइकिल, ठीक है। अब सेल साइकिल में देखो, सबसे पहले ये समझना है कि सेल्स का डिवीजन क्या है, मतलब सेल साइकिल एंड डिवीजन की भी हम बात करनी चाहिए यहाँ पे, डिवीजन ऑफ कोर्स। So why do we need this? You obviously need this because of the various reasons, ठीक है। Because cell division required होता है in order to help in reproduction, of course, reproducing more amounts of cell, है ना, मल्टीपल सेल्स बनाने के लिए, टिश्यूज को फॉर्म करने के लिए, बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो वहां पे रिपेयरमेंट के काम आता है सेल डिवीजन, है ना। तो सेल डिवीजन के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस भी है।
अब ये सेल डिवीजन आपके दो तरीके से होता है, ठीक है। लेट्स चूज अ डिफरेंट कलर। एक हमारे पास होता है माइटोसिस, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस में क्या क्या डिफरेंस है, देखो माइटोसिस इज बेसिकली द वन विच इज डन इन द the cells which are a part of your body and not a part of your reproductive cells। इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक तो सेक्स सेल्स होते हैं विच आर ओनली देयर फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पसेस, और एक आपके हो जाते हैं नॉन सेक्स सेल्स, ओके, विच आर बेसिकली योर बॉडी सेल्स, ठीक है, जिसे हम बॉडी सेल्स भी कह सकते हैं, बॉडी सेल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे बात हो रही है सेक्स सेल्स की, तो दो टाइप के सेल्स होते हैं हमारे पास, बॉडी सेल्स एंड सेक्स सेल्स। तो बॉडी सेल्स हो गए जैसे नर्व सेल हो गया है ना, जैसे तुम्हारा आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ये सारे जो सेल्स है ना जो अपना डे टू डे रूटीन काम कर रहे हैं, बस इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है रिप्रोडक्शन में, ये सेल्स होते हैं आपके बॉडी से, ठीक है। और जो सेक्स सेल्स होते हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में होता है, फाइन। So mitosis you will see happening in the body cells, whereas meiosis is something you see happening in the sex cells। अब इनमें क्या डिफरेंस है, अब इनमें डिफरेंस ये है कि देखो माइटोसिस में क्या होता है ना, वी हैव वन सेल, लेट्स से दैट ये वन सेल है, ठीक है, और इसने अपने आप को फर्दर आगे चल के दो और सेल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, यानी कि दिस इज अ पेरेंट, ओके, और इसने अपने अपने आप को डिवाइड कर दिया एंड क्रिएटेड इटसेल्फ इनटू टू डॉटर सेल्स, फाइन। तो ये जो पेरेंट सेल होता है ना, इसके पास 2n क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, टोटल कितने क्रोमोसोम्स होता है, 46 ना, कितने हो गए, 23 होता है ना, 23 का पेयर होता है, तो 23 का पेयर इसका मतलब 46 क्रोमोसोम्स है, राइट। तो ये आगे चल के भी अपने दोनों डॉटर्स को भी 46 क्रोमोसोम्स ही पास ऑन करेगा, यानी कि दोनों को भी 2n की कैटेगरी देता है। तो अभी 2n का क्या मतलब है, इसको भी देखो ध्यान से देखो, n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये n डिनोट क्या करता है, 23 क्रोमोसोम्स को डिनोट करता है। देखो हमेशा ना हम जब कभी भी क्रोमोसोम्स की बारी मतलब बात करते हैं तो क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में आते हैं, ठीक है, दो का मतलब एक पेयर है तो इसका मतलब उसके अंदर दो है क्रोमोसोम, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम्स की जब मैं बात कर रही हूँ, यानी कि 23 क्रोमोसोम इंडिविजुअल 23 क्रोमोसोम, पेयर की बात नहीं हो रही है, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने इसे 2n बना दिया, इसका मतलब 23 प्लस 23 यानी कि 46 क्रोमोसोम्स मैंने बना दिया, ओके। तो इस n को हम बोलते हैं हेप्लॉइड कंडीशन, और इस 2n को हम बोलते हैं डिप्लॉइड कंडीशन। हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, प्लॉइडी वर्ड का मतलब क्या होता है, प्लॉइडी का ही मतलब होता है क्रोमोसोम, ओके। हमेशा याद रखना, चाहे हम एनिमल्स मतलब किसी भी एनिमल की बात करते हैं और या फिर प्लांट की बात करते हैं, क्रोमोसोम जो होंगे ना, ये हमेशा आपके एक ऐसे नंबर पे बेस्ड होंगे जो जिनसे आप फर्दर उन्हें ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यानी कि अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो हमारे पास 46 ओवरऑल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप आधा करके 23 तक तो ला सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते हो, ओके। तो माइटोसिस यानी कि जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं ना, वहां पे ज्यादा अमाउंट के क्रोमोसोम्स का होना जरूरी है, बिकॉज देयर वर्कलोड इज अ लॉट मोर, ओके। तो क्या हुआ, जो पेरेंट सेल वाले, जैसे ये हमारा एक आरबीसी है, तो एक आरबीसी के अंदर अगर 46 होना, उसी आरबीसी ने अपने आप को फर्दर दो और आरबीसी में अगर डिवाइड कर दिया, तो वो अपना एक और कॉपी बना देता है, ठीक है, ये अपनी एक और कॉपी बना देता है, 46 की हो जाती है टोटल हमारे पास, तो एक 46 को अपने एक डॉटर को दे देता है, दूसरा 46 दूसरे डॉटर को दे देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। तो ये एक न्यूक्लियर डिवीजन में होता है, ओके, सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन, ऑलराइट, सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हुआ आपका क्या नाम है, हाँ, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ माइटोसिस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, फाइन। मियोसिस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मियोसिस यहाँ पे पहली बात तो दो न्यूक्लियर डिविजन में पूरा होता है, ठीक है। तो देखो एक चीज और, हाँ, बिफोर आई, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। अब इक्वेशनल डिवीजन मैंने क्यों कहा, इक्वेशनल डिवीजन का मतलब ये होता है कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैव बीन पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट टू द डॉटर। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि एक सेल से दो बन के आ रहे हैं तो मैम इक्वल कैसे हुआ, एक से तो दो बन रहे हैं ना, नहीं, यहाँ पे बात हो रही है क्रोमोसोम नंबर की। अगर ऊपर 46 है और नीचे भी दोनों को 46 मिला है तो इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। लेकिन जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो
यहाँ पे हो जाता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल कैसे हो गया वो अभी हम समझते हैं। देखो पहला जो आपका पार्ट हुआ, इसमें पहला जो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और ये दूसरा, ठीक है। पहले न्यूक्लियर डिवीजन में अगेन लेट्स से यहाँ पे ऑफकोर्स पेरेंट के पास 2n यानी कि 46 क्रोमोसोम है, उसने आगे अपने आप को डिवाइड कर दिया और यहीं पे आप देखोगे कि यहीं पे रिडक्शन हो जाता है और दोनों डॉटर्स को इस समय अब मिल जाएंगे सिर्फ एन कैटेगरी, यानी कि दोनों को सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स में, ठीक है। यही रिडक्शन हो गया। ओके, इस वाले केस में क्या हो रहा था, इस वाले में तो पेरेंट ने अपना एक 46 एक और बना दिया था, यहाँ पे कोई कॉपिंग नहीं हुई, यहाँ पे एक और 46 नहीं बना, ठीक है। तो इसका मतलब जो इस 2n में यानी कि 46 थे वही फर्दर आगे चल के डिवाइड हो गए और वो टोटल कितने बना दिए 23 ईच। क्लियर है। अब ये जो 23 हुआ इसके बाद यानी कि ये अब हमारे पास 46 है तो दोनों को यहाँ पे एन देके 23 का हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो न्यूक्लियर डिवीजन होगा, नेक्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे अब वो नॉर्मल रहेगा। अब इसमें अब बिकॉज दोनों डॉटर सेल्स के पास 23 थे तो मैंने क्या बोला 23 से कट के वो 12.5 या 11.5 तो जाएगा नहीं, है ना, होल नंबर ही रहना है। तो 23 से आगे फर्दर आके भी जितने भी डॉटर सेल्स अब लास्ट में हमें मिलेंगे वो सब हैप्लॉइड कंडीशंस के होंगे और सबके पास 23 ही आएगा, ठीक है। तो ये जो सेकेंड फेज होता है ना मियोसिस का वो बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही होता है, लेकिन मैम ये सेकेंड फेज फिर हो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज हमें सेल नंबर ज्यादा चाहिए, ठीक है। जो हम स्पर्म्स और ओवम की बात करते हैं ना विच इज रिक्वायर्ड एज यू नो दी सेक्स सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन, तो वो होने जरूरी है। खुद सोचो अगर मैं एक सिंगल स्पर्म की बात करूँ, सिंगल स्पर्म में अगर 46 क्रोमोसोम हुए और दूसरा एग में अगर 46 क्रोमोसोम हुए और साथ में आगे जब उन्होंने फर्टिलाइज करा तो 92 का एक जायगोट नहीं बनाएगा, एंड इज दैट इवन पॉसिबल, नहीं हो सकता ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो फाइनल मियोसिस में हमें सेल्स मिले, डॉटर सेल्स मिले, वो सारे हैप्लॉइड कंडीशन के, ठीक है। तो पहले ही फेज में रिडक्शन हो गया इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। सेकंड फेज में इट इज इक्वल और सिमिलर टू माइटोसिस ओनली, बिकॉज हमें नंबर ऑफ सेल ज्यादा चाहिए इसलिए हमने सेकंड फेज भी आगे कैरी फॉरवर्ड करा, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर मियोसिस। ओके, alright, I hope this is clear to everyone. So let's have a quick recap of what we have discussed, ठीक है। और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय करते हैं। राइट, सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आज हमने पढ़ा जो बेसिकली दीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स विद इन द सेल व्हिच आर इंटरकनेक्टेड बिकॉज दे आर कोऑर्डिनेटली फंक्शनिंग टुगेदर, राइट। अब बारी आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सबसे पहले, जो कि ट्रांसपोर्टिंग और प्रोडक्शन यूनिट की तरह काम करता है, ठीक है। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर होगा, न्यूक्लियस से ही अटैच रहता है ये, ओके। मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टर्नस एंड वेसिकल्स यहाँ पे भी मौजूद होते हैं, एंड these are of two types which is RER and SER, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड्स क्रिएट करता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कार्बोहाइड्रेट्स, हार्मोन्स, ये सभी ये बनाता है। एनिमल सेल्स में स्पेसिफिकली याद रखना है कि SER का बहुत ज्यादा महत्व है, क्यों, क्योंकि ये लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स भी क्रिएट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एज वेल, ठीक है। Golgi apparatus और Golgi bodies was discovered by Camillo Golgi in 1898 और उन्होंने इसको बताया कि ये एक मॉडिफिकेशन यूनिट की तरह काम करता है जो कि पैकेजिंग भी करता है और ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन में कुछ नहीं होता, एक टैगिंग हो जाती है उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में, एक तरीके से एक एड्रेस पेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, कि तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें यहाँ जाना है, फाइन। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि वो मॉडिफिकेशन होने के बाद इनकी पैकेजिंग हो जाती है इनटू दीज बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं वेसिकल्स, एंड देन दे डिलीवर टू द रिक्वायर्ड एरियाज विद इन द पर्टिकुलर सेल। सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाता है ताकि मेम्ब्रेन डायजेनेसिस हो सके, ठीक है। And apart from this, your Golgi apparatus makes lysosomes and also makes glycoproteins and glycolipids as well. Fine. Then we discuss about lysosomes being the cleaning unit of the cell because इनका काम है कुछ भी अगर बाहर का कचरा आ गया या अंदर का कोई भी कचरा जो उत्पन्न हो रहा है या इट इज स्टार्टिंग टू फॉर्म, उस सबको डाइजेस्ट करके बाहर फेंकने का काम करता है लाइसोसोम। So they help in digestion. They're present in the cytoplasm and they are considered as a suicidal path. They have a hydrolytic enzyme which helps in the process. Okay. And vacuoles are nothing but the storage units, all right, which are consisting of water, sap, excretory products, and so much more. And these vacuoles are covered with a membrane called as tonoplast. Okay, they maintain the turgidity of the cell. Next, we discussed about the centrosomes and centrioles. So centrosomes are actually the materials that are only present in the animals. You won't find this in the plant, and they are basically centrosome is nothing but like a perpendicular structure of centrioles. ठीक है, एक पेयर होता है centriole का जो एक दूसरे से perpendicularly मौजूद होता है और इनका काम होता है is to initiate and maintain the cell division in animals. That is their only job. ठीक है।
Then we have discussed about the cell cycle or the cell division, basically, which is again for two types. जैसे कहते हैं mitosis and meiosis. Mitosis equational division होता है, meiosis reductional division होता है. Mitosis is seen in the body cells and whereas meiosis is seen in the sex cells. ठीक है. तो माइटोसिस में क्या होगा कि अल्टीमेटली जो हमें डॉटर सेल्स मिलेंगे वो डिप्लॉयड कंडीशन के ही होंगे. ओके. एंड जो मियोसिस में अल्टीमेटली हमें सेल्स मिलेंगे वो हेप्लॉइड कंडीशन के ही मिलेंगे. ठीक है. आपकी जो माइटोसिस है उसमें एक सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मियोसिस में दो न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं. फाइन. एंड देन या दैट वाज अबाउट इट. एंड आई होप हेप्लॉइड और डिप्लॉइड भी क्लियर हो गया होगा. प्लॉइडी वर्ड का ही मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर. तो हेप्लॉइड का मतलब हो गया सिंगल. ठीक है. एंड डिप्लॉइड डाई हो गया, डाई मतलब दो. तो डिप. ठीक है. So yes, that's all for this particular chapter. I hope ये chapter आपको अच्छे से clear हो गया होगा. If you still have any doubts, any questions whatsoever, you can always put it in the comment sections. Okay, your feedbacks are really valuable, and I would really love it if you could, share and subscribe to this channel. All right. Thank you so much for watching, everyone. Have a great day or night ahead. Take care of yourself. Bye bye.